Hello everyone, in the Ansari again, and today we are going to well over the questions of the news regarding the constitution body and the other areas which we covered the last couple of days. So the very first question we have is regarding the National Commission for the Backward Classes. So this is the role of National Commissions for the Backward Classes in the wake of its transformation from the statutory body to a constitution body. So first, I will tell that what is the evolution and how it was transformed from being the statutory to a national commission. On the recommendation of the Mandal Commission in the 1992, the commission, the National Commission for Backward Class, was established in 1993, and in the year 2018, it was assigned the constitutional status by 102 Amendment Act with the new article, that is 338B, which provides it is the constitutional status. जब हम बात करते हैं transformation, so it is done. Now, what is the role? So we have seen that the role of the National Commission is number one, investigation of the matters related to the constitution and legal safeguards regarding backward classes. Number two, inquire into the complaints which have been registered where the rights or the privileges of the backward classes have been taken from them by the executive or by the legislative authority. Number third, provide the policy recommendations to various policy commissions when we have a NITI Aayog, other ministries. Apart from that, present the annual report about the backward commission's workings, the backward classes status, and the grievances which have been addressed or not to the President of India, who has to lead the report on the floor of the House of the Parliament. And the other functions we can also function when the President assigns. इसके अलावा अगर हम बात करें, so the recommendations are completely advisory. They are not recommended. They are just of recommendatory nature. They are not legally binding. And yes, we can say that the National Commission for Backward Class works as a quasi-judicial body in terms of when it deals with a civil court. So it has the powers of civil court. What it can does under that, four things. Number one, summon. Number two, document मंगा सकते हैं. Number three, affidavit. And number four, you can recommend the courts to have the custody of particular person if he or she has been convicted under the charges regarding the backward class. So this is the question. Now we have the second question, and that is to discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of the member of parliament or the state legislature under the RPI Constitution. What are the grounds on which the election of any returned candidates may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision that was taken? So currently, I'm not able to highlight the case laws, but what I can tell in this question is that RPA 1951 deals with the qualification and the disqualification of the member of parliament, also with the member of the state legislature, जिसमें MLA MLC भी होती है. इसके अलावा क्या-क्या डिस्क्वालिफिकेशन किन-किन एरियाज में हो सकती है? तो जब आप एंटी डिफेक्शन करते हैं, तब आपके ऊपर जो है आरपीए के अंडर चार्जेस लगते हैं. इसके अलावा जब आप करप्ट प्रैक्टिसेस करते पकड़े जाते हैं. करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हमने कल भी बात की थी इन डिटेल कि आप मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप एल्कोहल, आप मनी, आप मसल, आप कोल जो है उसको खराब करने के लिए डिस्टोर्शनरी प्रैक्टिस करते हैं, आप आर्म स्मगलिंग करवा रहे हैं, आप सोसाइटी के अंदर एनमिटी को प्रमोट कर रहे हैं बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, जिससे हेट्रेड आप फैला रहे हैं, हेट स्पीच आप कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, डिफेमेशन का केस आपके ऊपर लग जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं. ये सारे ही मैटर्स हैं जो आरपीए 1951 के अंदर है. इसके अलावा कुछ और मैटर्स हैं, यानी आपने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बताया, आपने अपनी फाइनेंशियल बैकिंग टाइमली न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज नहीं करवाई, आपने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आपने इलेक्शन कमीशन की जो मैंडेटरी रिकमेंडेशंस उनका पालन नहीं किया, आपने जो है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आपका नाम दर्ज हो गया जिसके अंदर 2 साल से ज्यादा का प्रावधान सजा का आपके लिए है. इन सारी कंडीशन के अंदर यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. अब बात आती है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या रेमेडी है? तो रेमेडी आपके पास है सेक्शन 8 क्लोज 4, जिसके अंदर आप 2 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं. और इसी के लिए जब हमारा इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि दिस सब सेक्शन ऑफ
Article 8 of RPA should be repealed because it provides a political immunity to the parliamentarians who are not suitable for the parliament to work in, and वो remedy इनकी खत्म होनी चाहिए. Now we have the third question. While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. तो ऐसा हम नहीं मानते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रलाइजेशन फेवर करती है. पहले तो हम डिसएग्री करेंगे इस क्वेश्चन से, और दूसरा कि रीजनल पार्टी स्टेट ऑटोनॉमी चाहती हैं, ये बात सही है, लेकिन वो रीजनल पेट्रियोटिज्म को नेशनल पेट्रियोटिज्म के अंदर एज एन इंटेग्रल पार्ट बनाने की डिमांड करते हैं. उनकी स्टेट ऑटोनॉमी सिर्फ इतनी थी. वो नहीं चाहते कि हम सेसेशनिस्ट मूवमेंट करें, वो नहीं चाहते कि हम रेडिकलाइजेशन करें, वो नहीं चाहते कि हम एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चला दे सेंटर के खिलाफ. वो स्टेट ऑटोनॉमी सिर्फ कुछ मामलों के अंदर था. जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वो कहते हैं कि जो गवर्नर है उनका डिस्क्रिशनरी रोल स्पेयरिंगली यूज होना चाहिए. यहाँ पर डिस्क्रिशनरी रोल नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि गवर्नर हैज द डिस्क्रिशनरी पावर्स इन वेरियस सर्कमस्टांसेस बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट. तो डिस्क्रिशनरी पावर का आप स्पेयरिंगली यूज कीजिए, ऐसा एआरसी भी कहती है, ऐसा सरकारिया कमीशन भी कहता है, ऐसा पुंची कमीशन 2007 में भी कहता है. इसके अलावा आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपके आते हैं, इमीडिएट कंट्रोल जो है आप स्टेट के पास ही रहने दीजिए. आप उनको डेप्यूटेशन के बहाने से उनको इंटरफेयर मत करवाइए. एग्जाम्पल, चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश वर्सेस दिल्ली, केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर. इसके अलावा स्टेट बोलते हैं कि आप एडमिन मामलों से हट करके, अब हम बात करें अगर लेजिस्लेटिव मामलों के अंदर, तो आप कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कानून अगर बनाएं तो हमारे को भी थोड़ा बहुत कंसल्ट ले लिया करो. स्टेट के अंदर आप कानून मत ही बनाइए, आप ऑर्डिनेंस जो है कम पास करिए. इतना सा इनका कहना है. और आखिरी चीज है कि अंडर आर्टिकल 201 आप गवर्नर जो है बार बार फाइनेंस बिल का नाम लेकर के, मनी बिल का नाम लेकर के प्रेसिडेंट को मत सबमिट करिए बिल, हमारी ऑटोनॉमी रहने दीजिए. वो इतना सा कहते हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स में क्या कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में आप जितना पैसा डिसाइड करते हैं उसमें स्टेट को जो कंपेंसेशन मिलना है आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए कुछ सालों के लिए. और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, स्टेट कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं बात की जाती है कि हमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, थोड़ा और पैसा मिल जाए ताकि अच्छे से काम कर सके. एग्जाम्पल ऑफ केरला, जहाँ पर सड़क बनाने के लिए ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड से मांगा गया, उनको दिया भी गया. इसके अलावा वो बोलते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशन है, उसके जो मैंडेट है, उनके अंदर जो स्टेट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इक्वलाइज होना चाहिए, उसके अंदर जो है इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. ये बोलते हैं स्टेट ऑटोनॉमी के लिए. अब अगर बात करें तो क्या ऐसा बोलना गलत है? नहीं, ऐसा बोलना जायज है, क्योंकि तभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तभी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है, तभी बॉटम टू अप अप्रोच गवर्नेंस है, तभी डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डीपीएसपी का भी पार्ट है वो अप्लाई हो, तभी कंट्री जो है कॉम्पिटेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नीति के ऊपर काम कर सकती है, तभी जो स्टेट्स हैं वो और सेंटर जो है दोनों आपस में हार्मनी और पीस के साथ कंट्री को 5th ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट तक, रिजिलियंस इकोनॉमी के टारगेट तक, एसडीजी के टारगेट तक, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के टारगेट तक पहुंचाने के अंदर भूमिका निभा सकते. अब बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन. तो ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहती है, वो एक सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी कंट्रोल चाहती है स्टेट्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. इसके अलावा रीजनल जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा बन जाती है. एग्जाम्पल खालिस्तान, एग्जाम्पल लैंग्वेज के डिमांड पे सन ऑफ सोइल थ्योरी, एग्जाम्पल हरियाणा का बिल जिसमें बोला गया कि हरियाणा के लोगों को ही ग्रुप सी लेवल तक में रिजर्वेशन होगी. एग्जाम्पल महाराष्ट्र का, जहां पर आप बिहार से आने वाले लोगों को पीट कर भगा देते हैं कि आप हमारी नौकरियां खा गए. एग्जाम्पल असम अकॉर्ड, जहां पर इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के नाम पर आपस में लड़ाई रहती है. नागालैंड मणिपुर का हमने इंसिडेंट देखा ही. तो कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टीज है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहती. नेशनल पार्टीज रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी, सेंट्रलिटी ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री, और उसी के लिए कहीं ना कहीं जो सेंटर है उसको क्वासी जुडिशियल पावर दी गई है ताकि जो एक्सीजेंसी सिचुएशन है उनको काबू में किया जाए, जो रीजनल इंटरेस्ट नेशनल ऑटोनॉमी के ऊपर खतरा बन रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए. उससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी, कमर्शलाइजेशन, हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल कमर्शलाइजेशन, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, वो कंट्री के अंदर बढ़ेगा. इसके अंदर इवन डेवलपमेंट कंट्री के अंदर होगा. कोई स्टेट किसी स्टेट के ऊपर कोई डिस्प्यूट का लांछन नहीं लगाएगा कि हमारी टेरिटरी आपने ले ली, हमारी रिवर का पानी आपने ले लिया.
और इसी के लिए जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिवर ट्रिब्यूनल, इंटरेस्ट रेट ट्रिब्यूनल जो कि प्रेसिडेंट बनाते हैं अंडर आर्टिकल 263, और रिवर वाला 262 पार्लियामेंट बनाती है। कावेरी पैक्ट हो गया, गोदावरी पैक्ट हो गया, कृष्णा पैक्ट हो गया, नर्मदा हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी हैव द अपर हैंड बट नॉट द सेंट्रलाइजेशन ट्रेंड इन इंडिया। और इसीलिए एक जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ग्रीनवाल ओस्टिन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर रिसर्च की, पीएचडी की, पढ़ा लिखा, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। उनका ऐसा कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the best example of cooperative federalism which has the features of quasi federal to deal the exceed। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमने कल ही बात की कि जो इवोल्यूशन ऑफ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का ये एक सेट ऑफ रूल्स है, नियम है जो हर पॉलिटिकल पार्टी मानती है एज अ पॉलिटिकल कन्वेंशन। ना तो ये रेगुलेट, ना तो ये स्टैट्यूटरी है, ना ये कोडिफाइड है, और ना ये किसी पार्लियामेंट के कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर नहीं। केरला के अंदर सबसे पहले आए और उसी मॉडल को पैन इंडिया लेवल पर अडॉप्ट किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस हो गए, आपके लेजिस्लेटर हो गए, आपकी मीडिया हो गई, आपके जो जर्नलिस्ट हो गए, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो गई, सबके कायदे कानून है कि किस तरीके से इलेक्टोरल पीरियड के टाइम पर आपको अपने कार्यों का निर्वहन करना है। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बढ़ा। कैसे? दो तरीके से। आप इलेक्टोरल इंजीनियरिंग कर दी आपने। इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हर किसी के ऊपर रेगुलेशन लिया है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, उनको बोला गया है कि अगर आप रैली निकालते हैं आप परमिशन लीजिए। अगर आपकी रैली का और दूसरी पार्टी की रैली का सेम टाइम है, आपकी रैली का टाइम आप रिक्वेस्ट के तौर पर आप उसको हटाइए, ऊपर या नीचे कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है पॉलिटिकल कैंपेनिंग जब करते हैं तो आप जो है ज्यादा पैसा मत लगाइए, एक सीमा में लगाइए जिसके ऊपर लिमिट है कि पार्लियामेंट की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप 70 लाख लगा सकते हैं। इसके बाद स्टार कैंपेनर के भी ऊपर है कि आप स्टार कैंपेनर 5 से ज्यादा नहीं रख सकते हो, और रखोगे तो उसके उसका जो भी खर्चा आएगा वो पॉलिटिकल पार्टी के खाते के अंदर ऐड नहीं होगा। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बात की जाती है कि आप हेट स्पीच नहीं करेंगे, एनविटी नहीं बढ़ाएंगे, आरपीए के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का निर्वहन करेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल जो है इलेक्शन कमीशन का बढ़ गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आने से। अब पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया was imposing the regulation, but now election commission of India not only imposing but also getting the पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जब हर पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निर्वहन करने के लिए इलेक्शन कमीशन का साथ देती। इलेक्शन कमीशन जब आपको, अगर हम रिसेंट का एग्जांपल लें तो यूनियन मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक वेस्ट बंगाल या केरला के मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर केस भी रजिस्टर हो गया। तो इससे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड द टीथ so that it can deal the various political challenges it faced during the electoral time। जब हम बात करें जर्नलिस्ट की, उनके लिए भी बोला गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर पहले क्या होता था कि आप ओपिनियन पोल बिना किसी मर्जी के पब्लिक कर रहे हो। उससे होता यह था कि जितने भी पोल बचे हुए थे होने, उनके अंदर या तो लोग जाते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता लग जाता था कि जो पार्टी पहले ही जीत रही है उसको हम चाहते नहीं, उसको हम वोट नहीं देना चाहते। अब ऐसा नहीं होता, सिक्रेसी रखी जाती है वोट की। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही पहले ये होता था कि अगर आपने ओपिनियन पोल पहले जारी कर दिया तो बहुत सारे लोग उसी पार्टी को वोट देते थे जो ज्यादा जीतती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, सेक्रेसी वोट है, जिसका जिसको मन है उसको देते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम बोल सकते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एवोल्यूशन से उसकी पावर, उसकी इमेज, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हुआ है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये साबित किया कि टीएन शेषन सर के टाइम से जो इलेक्शन कमीशन एक बिहेवियरल डिवोल्यूशन इंडिया के अंदर ला रही है। जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल इलेक्शन, पार्टिसिपेटरी इलेक्शन, इसके बाद सेंसिबल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो सारे के सारे जो नॉर्मेटिव और फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं आज के टाइम पे हम उनको अपहोल्ड होते हुए देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और हमारे पंचायत के सरपंच तक हर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन। देन वी हैव द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इनके ऊपर एक क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये डायरेक्ट हैंडेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लाइन है जिसमें बोला जाता है कि अंडर आर्टिकल 78 वी हैव द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि चीफ लीगल एडवाइजर हैं
किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और लोअर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट या फिर जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है या जो एग्जीक्यूटिव है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, वो अटॉर्नी जनरल को रिकमेंडेशन करती है उनके अपॉइंटमेंट के। जैसे इलेक्शन होता है, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट होती है। अब अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी रिकमेंडेशन ली जाती है। इसके अलावा इनकी सैलरी, इनके अलावेंसेस, सारी चीजें प्रेसिडेंट तय करते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को जब चाहे वो हटा भी सकते हैं, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है अटॉर्नी जनरल के लिए। चीफ लीगल एडवाइजर का क्या मतलब? हमने देखा कि अंडर आर्टिकल 143, 142, 141 प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, लेकिन किन दो मैटर्स पर? पहला किसी लीगल मैटर पर, और दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के दौरान कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर उनको जरूरी होता है देना, लेकिन किसी लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं होता है देना। तो इन केस में जब उनके पास लीगल एडवाइस नहीं है, तो यहाँ पर रोल आता है अटॉर्नी जनरल कि आप लीगल एडवाइस दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब लीगल एडवाइस जब आप दे रहे हैं तो क्या क्या उसमें कंडीशन है? पहला, आप जब यूनियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस दे रहे हैं, उस तरीके की सेम एडवाइस आप किसी और को नहीं दे सकते। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो एडवाइस देते हैं वो सैक्रोसेंट होनी चाहिए, वो आपके ऑफिस की जो डिमांड है उसको मीट करनी चाहिए। इसके अलावा आप पार्टीशन पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे एडवाइस देते हुए। जिसको एडवाइस देनी है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अगर मान लीजिए कि गवर्नर कुछ लीगल एडवाइस आपसे मांगना चाहते हैं तो नहीं दे सकते आप, आपको परमिशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तभी आप लीगल एडवाइस दें। किन मुद्दों पर दे सकते हैं? किसी भी मुद्दे पर दे सकते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन से लेके कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ से। जब हम बात करें सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, so there was a parliamentarian, senior parliamentarian in the Rajya Sabha, P. Chidambaram, who was the finance minister of India. He said and he quoted, why the attorney general is not in the parliament, because we want to take the legal advice. तो ऐसा उनका बोलना गलत भी है, सही भी है। सही कैसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनको राइट टू वोट नहीं होता। पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर उनको विटनेस नहीं बना, उनको मेंबरशिप अलाउड, किसी भी कोर्ट के अंदर जाके वो सुन सकते हैं क्या प्रोसीडिंग चल रही है। तो इसलिए वहां भी उन्होंने उसको उनको कोर्ट किया। अब बात करते हैं लोअर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोअर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे? सेंट्रल स्टेट के बीच में लड़ाई है, ये डील करेंगे। स्टेट और यूनियन के बीच में फाइनेंशियल मैटर्स, एडमिन मैटर्स, ट्रिब्यूनल मैटर्स, रिवर मैटर्स, कुछ भी मैटर है, सारा का सारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डील करेंगे। इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी है। और अभी के टाइम में जो हम केस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग मुद्दों के ऊपर, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो अलग अलग जो प्रोमिनेंट केस अभी चल रहे हैं कंट्री के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, सभी के ऊपर जो डील कर रहे हैं, हिज नेम इज सॉलिसिटर जनरल हर्षद मेहता, हर्ष मेहता। जो सो लोअर का काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही लोअर है? तो ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोअर है, लेकिन प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं। इनकी इतना इनको सहूलियत दी गई है। और यहाँ पर भी हम इन्फ्लुएंस देखते हैं हमारे लीगल ल्यूमिनरीज का, जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बताया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर हमारे लोअर ही थे, और उन्होंने बोला कि लोअर एडवोकेसी इज अ प्रैक्टिस, इज अ प्राइवेट प्रोफेशन, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को आप लीगल एडवाइस भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट के आप लोअर भी हैं, और कहीं ना कहीं आप प्राइवेट भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर आपके पास कुछ और पॉइंट्स है तो आप बताएं। Now we have a question in the light of recent controversy regarding the use of EVM. What are the challenges for the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? तो अगर हम बात करें क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईवीएम, पहला, ऐसा बोला जाता है कि जो ईवीएम है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है। दूसरा, ऐसा बोला जाता है कि ईवीएम जो है उसको उसके अंदर मिसमैनेजमेंट की जाती है, इलेक्ट इलेक्ट जो इलेक्शन इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा फ्रॉड किया जाता है मशीन के अंदर, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट से होता है, वो मुझे नहीं पता, तो आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा कंट्रोवर्सी क्या है? ईवीएम के ऊपर चैलेंज किया जाता है। कैसे? ये बोला जाता है कि ईवीएम जो है उसके ऊपर सीसीटीवी आप लगाइए जब आप काउंटिंग करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दूसरा, जब आप ईवीएम से काउंटिंग करते हैं तो उसके ऊपर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऐसा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। और आखिरी जो है वो एक हम बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, ईवीएम जो है उसको मिसयूज किया जाता है बाय दी सर्विंग पार्टी।
लेकिन दीज आर द एलिगेशंस। तो व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एंश्योर द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? तो सबसे पहला, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल लेवल मेजर जो इलेक्शन कमीशन ने उठाया, वीवीपीएटी। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर चैलेंज करते हैं, ईवीएम में हमने गड़बड़ करी, आप वीवीपीएटी लाइए। वीवीपीएटी के अंदर आपको कुछ सेकंड्स के लिए आपकी पर्ची दिखाई जा रही है, आपने जो वोट डाला ईवीएम के ऊपर, वीवीपीएटी के अंदर स्लिप भी आ गई, यानी आपका डाटा हमने दो जगह लिया। अगर आप प्ली लगाते कि हमने ईवीएम के अंदर मिसमैनेजमेंट की है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर्ची से ऑडिट करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन और जितने भी इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स होंगे अंडर द जुडिशियल पैनल, वो देख सकते हैं कि अगर किसी पोलिंग बूथ के अंदर ऐसा बोला जा रहा है कि ईवीएम खराब थी या मिसमैनेजमेंट हुआ, तो वीवीपीएटी की पर्चियों को भी मैच करके देख लो, उतनी है तो बराबर। इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये किया। दूसरा, हमने देखा है कि जो काउंटिंग होती है वोट्स की, वो फुली सिक्योरिटाइज होती है, जिसके अंदर आपके जो एसडीएम डीएम लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर होती है, पूरी सीसीटीवी कवरेज होती है, नो मीडिया एंट्री होती है। इसके अलावा एक साथ डिक्लेयर किए जाते हैं वोट, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी वोट कहीं पर ज्यादा पड़ रहा है और कहीं पर कम पड़ रहा है, और एक साथ क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज पूरा सिस्टम कर दिया वोटिंग। इसके अलावा बिहेवियरल लेवल पर क्या किया? ट्रस्टवर्दीनेस कैसे बढ़ाई इलेक्शन की? पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब हम बात करें आरपीए, जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तीनों के अंदर रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन बैन लगा देता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने अपने पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया, जिसमें आप जो है अपना ईवीआईएम कार्ड बनाने से लेकर कंप्लेंट रजिस्टर तक सारा ऑनलाइन कर पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है उसको डिजिटाइज करने का काम किया है, जिससे एक्सेसिबिलिटी बढ़े, इंक्लूसिविटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन सिस्टम में आए। इसके अलावा ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने कुछ स्पेशल वो कुछ स्पेशल मेजर्स भी लेता है इलेक्शन के टाइम पर। जब वो मीडिया को रेगुलेशन देता है, जब वो पुलिस अथॉरिटीज को रेगुलेशन देता है कि आप ट्रांसपेरेंसी करवाइए, उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। अगर प्रोसीजर की बात करें तो पोलिंग बूथ के 1-1.5 किलोमीटर तक कोई आर्म्ड इंसान नहीं होना चाहिए, पहले सबके आर्म्स जो हैं वो जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा किसी को भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा जो आपको मल्टीपल स्टेप इलेक्शन सिस्टम कर दिया, जिसके अंदर आप एक बार आपके अंगूठे पे इंक लगा करके नहीं होता है, अलग अलग तरीके से प्रोसेस है जिसके अंदर से आपको जाकर वोट डालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सारे स्टेप लेकर के हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये शो किया है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो ट्रस्ट वर्दीनेस के बिहाफ पर होता है, और फ्री और फेयर, विदाउट फियर और फेवर होता है, विदाउट इल और विल होता है। और कहीं ना कहीं जो अभी हमारा नया कानून आया है 2023 का, उसके अंदर भी हम इस चीज को हाईलाइट करके देख सकते हैं कि इवन दो देर इज नो इंक्लूजन ऑफ सीजीआई, बट स्टिल nonetheless we can say that the multi-member body, election commission as a multi-member body, have prevented the monopoly of chief election commissioner and provided the unanimous decision which is providing the credit worthiness and trustworthiness to the election commission of India in ensuring the free and fair election. इसके अलावा हमारा सातवां क्वेश्चन है, whether the national commission for scheduled caste can enforce the implementation of constitutional reservation for the scheduled caste in the religious minority institutions examined. तो अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अंडर आर्टिकल 338, ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 5 मेंबर बॉडी है, ये हुआ इसका कॉम्पोजिशन। अगर हम बात करें क्या एनफोर्स कर सकती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, तो आई थिंक इट कैन एनफोर्स। हाउ सो? क्योंकि इसको पावर है सिविल कोर्ट की, हमने देखा इसको प्रवेश, पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल से। हाँ बोलिए। जो आपने बोला कि एनसीएससी कैन इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल का रिलीजियस माइनॉरिटी, ये नहीं है ये वाला चीज, क्योंकि आप जो डिटेल, रिलीजियस माइनॉरिटी, हाँ क्या हुआ? आप बोलो। हाँ, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल है, तो उसके अंदर में पहली बात है कि राइट टू एजुकेशन नहीं लगता है। और दूसरा चीज़ कि जो परसेंटेज है कि कितने होने चाहिए उनके स्टूडेंट, वो खुद तय करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन।
तो उसमें भी तीन कैटेगरी होता है। एक होता है इट इज़ एडेड बाय द स्टेट, एक इट इज़ रिकॉग्नाइज एंड एडेड बाय द स्टेट, और एक और तीसरा होता है कि इट इज़ सिर्फ रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, खुद चलाते हैं। तो जो एडेड वाले होंगे उसमें हो सकता है, जो आप एक चेक कर लेना, बाकी उसी में लेकिन बोल जगह रहा हूँ पे मैं, उसी में बोल इन्फॉर्मेशन। रहा था कि जो एडिड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर आप रिजर्वेशन जो है लगा सकते हैं फॉर दी SC ST। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें कि आप खालसा कॉलेज का एग्जांपल लीजिए। खालसा कॉलेज के अंदर ये है कि आपकी जो 75% सीट्स हैं वो आपकी सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व। इसके अलावा आपकी SC ST के लिए, OBC के लिए, और जो बच्ची कुछ भी आपकी जनरल कम्युनिटी के लिए। तो आप एनफोर्स कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज गेटिंग सब्सटैंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप रेक्टिफाई कर दीजिएगा। इसके अलावा हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज अ वेरी विटल रोल टू प्ले। एक्सप्लेन हाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द मेथड एंड टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वेल एज द रेंजेस ऑफ पावर ही कैन एक्सरसाइज। अब हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट एंडेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम देखें क्या पूछा जाए। कैग जो है उसका विटल रोल प्ले करने का काम है, ये कैसे पता लगे? उसकी अपॉइंटमेंट से और उसकी पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। हम बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा एक इनका टेन्योर भी है जो कि 6 साल है। रिजाइन कैसे आप करेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिजाइन होता है। इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनको है, यानी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट तो किया लेकिन हटेंगे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से। इसके अलावा इनकी जो सैलरी है वो चार्ज है एक्सपेंडिचर इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वोट नहीं हो सकता उसके ऊपर। इसके बाद हम बात करें तो कोई मिनिस्टर इनको पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और इनकी कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। इनकी जो रिकमेंडेशन होती हैं वो बाइंडिंग भी होती है, और इनकी रिकमेंडेशन जो है अगर आप नहीं मानते तो रिटर्न में दीजिए क्यों नहीं मानी गई। इसके अलावा जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी, जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट है, एस्टीमेट है और पब्लिक अंडरटेकिंग है, इनके अंदर इनका रोल होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड फिलोसफर गाइड काम करते हैं। जितनी ये रिपोर्ट बनाते हैं वो सारी की सारी पार्लियामेंट्री कमेटी और फाइनेंशियल अकाउंट जब स्टडी करती है तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट, जितने ट्रांजैक्शन है, जितने फंड है, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड भी है, पब्लिक अकाउंट भी है, कंटिजेंसी फंड भी है, सबके ऑडिट। इसके अलावा अलग अलग तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट की ऑडिट कर सकते हैं और मेनली 3 ये रिपोर्ट देते हैं: एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट होते हैं, हमने ये भी देखा। अब ये सारी चीजें क्या कैसे शो कर रही हैं कि उनका विटल रोल टू प्ले है? पहला, कैग जो है वही बताते हैं कि आपने कितना पैसा फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से यूज किया और बाकी आपने वेस्ट किया। कैग की रिपोर्ट में हाईलाइट होता है, जिससे पार्लियामेंट जो है कट मोशन से लेकर के पॉलिसी कट मोशन से लेकर के इकोनॉमी कट मोशन से लेकर के सेंश्योर तक करने का काम एग्जीक्यूटिव को करती है, पहली। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। आपको रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में। इससे क्या शो होता है? आपका जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट काम करता है, विदाउट फेयर फेवर इलेबल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से काम करता है और फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को अपहोल्ड करने का काम पूरी कंट्री के अंदर करता है। इसके अलावा ये दूसरी चीज। इसके अलावा तीसरी, आप जब इतनी कमिटीज के ऊपर रिपोर्ट देते हैं, इतनी चीजों के ऊपर रिपोर्ट देते हैं, मेनली जो फाइनेंस अकाउंट हो गया, अंडरटेकिंग हो गया और अप्रोप्रिएशन। फाइनेंस अकाउंट के अंदर आप बताते हैं कि कितना पैसा पार्लियामेंट लाई और कितना इसने लगाया। अंडरटेकिंग के अंदर एस्टिमेट और एक्सपेंडिचर। इसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग, कितनी पब्लिक अंडरटेकिंग ढंग से काम कर रही है, यानी पॉलिसी मैटर्स PSUs का, वो भी क्या की रिकमेंडेशन पर डिफाइन करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में, उसमें भी कैग की इंडिपेंडेंस और कैग का ऑफिस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम बात करें उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो गया या फिर उसकी जो पावर। हमने देखा कि जो
कैग है उसकी पावर क्या क्या है? रिपोर्ट बनाने के अलावा, रिकमेंडेशन देने के अलावा ऑडिट करती है, लेकिन कंट्रोलर का काम नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारा एक कंसर्न है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग इन यूके, वहां पर कंट्रोलर का काम भी करते हैं। कंट्रोलर का मतलब ये है कि पैसा लेने के बाद आप ऑडिट करते हैं, लेकिन पैसा लेने से पहले आप परमिशन लेते हैं। तो परमिशन लेने का काम हुआ कंट्रोलर का, और एग्जामिनेशन करने का काम हुआ पैसे का ऑडिटर का। तो इंडिया के अंदर सिर्फ ऑडिटर का काम कैग करता है, कंट्रोलर का नहीं करता। वैसे कंसर्न जो कि देना चाहिए, अलग अलग कैग जो है हमारे, उन्होंने ऐसा रिकमेंड भी किया कि आप हमें कंट्रोलर की पावर भी दीजिए। लेकिन नन दिलेस वी कैन से that in the Indian Constitution there are number of checks and principles which ensure that the controller role is played by other agencies in the form of Parliament of India. जब आप पैसा तभी देंगे जब आप पूरा प्रोसेस, थ्री प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर से गुजरेंगे। इसके अलावा आप पार्लियामेंट्री जो फाइनेंशियल कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पर ग्रांट देंगे। इसके अलावा आप मोशन पास कर देंगे जिसमें 100 रुपए से लेकर 1 रुपए तक आप ग्रांट को जो है छोड़ देंगे ला करके, चाहे वो 50,000 करोड़ की क्यों ना हो। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो सेंश्योर कर सकती है आपकी एग्जीक्यूटिव को कैग की रिपोर्ट के ऊपर या फिर बिना कैग की रिपोर्ट के ऊपर कि आप प्रूव करिए कि आपने पैसा कहाँ लगाया। और अगर आप नहीं बता पाते तो दैट लीड आल्सो टू द सेंश्योर मोशन, जिसके अंदर आप सेंश्योर होते हैं और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आपके ऊपर। So this is regarding the CAG. Or now we have the ninth question, which is the last of today. Exercise of CAG power in relation to the accounts of union and state is derived from Article 149. Very true. Discuss whether an audit of the government policy implementation could amount to overstepping its CAG jurisdiction. So absolutely. In Constitution, the CAG is not given the due power to study and to examine and to audit the policy implementation of the center or of the state. Though it can raise some of the concerns कि आपका जो आउटपुट या जो आपका आउटकम है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आपके जो डीएम साहब है वो जनधन मिशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर 50 लाख रुपए कहीं भूल गए। ऐसा नहीं कर सकते। उस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप मेजर हाईलाइट कर सकते हैं कि इस तरीके की जो फाइनेंशियल लूप होल्स है वो पूरे सिस्टम के अंदर देखे गए जब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन किया गया। लेकिन आप ऑडिट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली रिकमेंड, यू कैन ओनली हाईलाइट, यू कैन नॉट ऑडिट द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन ओनली ऑडिट द फाइनेंसेस। आप ये देख सकते हो कि पॉलिसी, अगर हम बात करें एक XYZ पॉलिसी, अगर हम बात करते हैं डीबीटी की, तो डीबीटी के अंदर अगर आप 50,000 करोड़ रुपए लोगों को देना चाहते हैं तो कैग ऑडिट कर सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया किस किस खाते में गया, कैसे गया और पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त, इम्प्लीमेंटेशन जो आप किया वहां पर भी मैं ऑडिट करूंगा। आप हाईलाइट कीजिए फलाना फलाना XYZ इंस्टीट्यूशन के द्वारा पैसे जो है रिलीज नहीं किए गए टाइमली, जिसकी वजह से डिले हुआ, काम नहीं हुआ, लेकिन आप ऑडिट नहीं कर सकते उसको। So this is the absolute direction given by the Constitution under Article 149 in the Constitution। और जब हम बात कर रहे थे कि कैग जो है किन किन चीजों के ऊपर रिपोर्ट कर सकता है, तो सिर्फ 3 चीजों के ऊपर, फाइनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट डू नॉट असाइन हिम द अदर पावर आल्सो। बट अगेन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आप ऑडिट नहीं कर सकते, ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर श्योरली मेंशन है और रिटन भी। So आज के लिए on and the last I would like to highlight that the institution, the religious institution in the question number, I think we had 7th, the substantial aid which the institution is getting, there the National Commission to Scheduled Castes can enforce the implementation of the constitutional reservation. It can also use the civil court power in case of grievances, if the grievances are not redressal. But yes, that is subjected to the approval by the central government, by the UGC, by the President of India, because National Commission of Scheduled Caste की report of President को जाती है, so with the prior permission of the President of India, it can do so, but it cannot enforce completely in all the religious minority institutions such kind of reservation. And here the term is minority, not the majority, because in the religious majority institutions we have the reservations also, but not in every religious institution. So for today, this much we have covered. So thank you so much and keep watching.